today we'll be talking about Indian economy, guys. So friends, you can see that there is a monsoonal rain in the Hyderabad, and this is very greenish University of Hyderabad campus. This is nearby library area. What you can see that, as I have promised ki today I will be making videos for the Indian economy, basically how to deal Indian economy for PG entrance as well as NET JRF. So it's me here. Very fantastic weather, you can see that. तो coming back to the topic, basically we will be basically here we will see कि CUET PG इकोनॉमिक्स इंट्रेंस में इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फॉर नेट JRF ऑल्सो. सो टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग how to deal with the Indian economy basically, and for this you are not supposed to follow all the books. Exam is very near, so you have very limited time. Please don't follow all the books. I would recommend to follow just one book, hardly, that is of 600-700 pages, and effectively 200-300 pages. Rest you are not supposed to read. तो वो है रमेश सिंह बुक. आई थिंक रिसेंटली 11th और 12th एडिशन हैज़ कम, सो यू प्लीज़ चेक इट आउट. रमेश सिंह बुक मैग्रॉ हिल की वो किताब है फॉर इंडियन इकोनॉमी. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द I think my telegram section, so you please watch that. And now I will be dealing how to deal with that book especially, and I will be also giving you the topic, what are the topics that you are supposed to read for the Indian economy, for the students who is preparing for UGC NET JRF as well as this CUET PG entrance, basically Indian economy. तो चलो सबसे पहले we'll discuss कि how to deal with this Indian economy book. Then I will be discussing कि व्हाट आर द अदर टॉपिक्स. तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं पहले कि यह जो बुक है दैट इज़ रमेश सिंह बुक, इसको कैसे पढ़ना है, सारे चैप्टर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं. जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी पहले मैं आपको मार्क कर दूंगा. उसके बाद मैं इस देखने के बाद 2 मिनट का वो होगा रमेश सिंह को कैसे पढ़ा जाए. उसके बाद के 2 मिनट में मैं आपको यह डिस्कस करूंगा जो कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इंडियन इकोनॉमी में दैट यू आर सपोज टू फॉलो, और वो काफ़ी मार्क्स फेचिंग पॉइंट हैं. बेसिकली वी विल कैटेगराइज 3-4 पॉइंट्स टॉपिक्स, उसी में आपको पढ़ना है. तो लेट्स चलो वॉच फर्स्ट दिस रमेश सिंह बुक, how to deal, then we will see the approach of Indian economy. तो guys चलो let's see this first. तो guys here you can see that I have taken 10th edition of Indian economy by Ramesh Singh. You need to not to take 10th only, जो भी आपके पास एडिशन हो, 11th हो 12th हो, उसके हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर देखने वाले हैं जो आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक्स में, और काफ़ी स्मूथली पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्ड और डिस्कशन में नहीं जाना है. फर्स्ट जैसे दिया हुआ इंट्रोडक्शन. हाँ, तो दिस इंट्रोडक्शन चैप्टर you can skip. After that just go through, scroll like how I am scrolling. Then growth and development chapter that you are supposed to do from that book, emerging and growth and development, वो चैप्टर भी छोड़ देना है इसको. evaluation of Indian economy you can skip. economic planning, this is very important chapter. So chapter number 4, chapter number 5, very important. Then comes economic reforms, this is very important. chapter 6 is very important. इन्फ्लेशन पढ़ना है, बिजनेस साइकिल भी पढ़ लेना है, और एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट आई थिंक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक, चैप्टर नंबर 8. आफ्टर दैट यू आर सपोज टू डू इंडस्ट्री एज वेल एज सर्विस को यू कुड स्किप. फ्रॉम सर्विस आई फाउंड कि वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो यू शुड डू दिस एग्रीकल्चर चैप्टर. एंड आफ्टर दिस इंडस्ट्री, दिस इज VVI चैप्टर. बैंकिंग इन इंडिया, येस यू मस्ट डू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बेसिक यू शुड नो. देखिए जहाँ पर भी डेटा आए, फैक्ट आए, टफनेस आपको लगे कि यह काफ़ी टफ लग रहा है टू कंज्यूम आवर माइंड, यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम. दैट इज़ द बेसिक रूल. इंश्योरेंस यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम. जस्ट बेसिक जो LIC GIC ये सब कब बना, व्हेन इट केम, nothing much detail. Security market you can skip, nothing much. Just basic instruments you should know, what SEBI was formed, when it started working, so basic you should know, that's it. And after that keep going. External sector, that is the most important chapter after एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो इन्फ्लेशन और दिस एक्सटर्नल सेक्टर है, ये आपको अच्छे से करना है. हाँ, जहाँ भी टफनेस आपको लगे उसको स्किप कर दें. टफनेस मीन्स कि योर लेवल इज़ नॉट दैट मच. इस बुक में हो सकता है थोड़ा टफ भी लगे, आपको मास्टर्स लेवल का तैयारी करना है. इवन फॉर नेट JRF मास्टर्स लेवल्स कहीं आते हैं.
एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक दिया है, IMF दिया है, ब्रिटेन वुड्स दिया है, OECD, WTO, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स स्ट्रक्चर ये कर लेंगे तो आपका पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर कवर हो जाएगा। पब्लिक फाइनेंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन पब्लिक फाइनेंस कवर हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे जो कि करंट अफेयर बेस्ड आएंगे। COP26 हुआ है ग्लासगो में, फिर रियो वगैरह जो हुआ था समिट, अर्थ समिट 92 में, उसको देख लेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। HDI को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इससे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आएंगे। ये HDI पुराना दिया है तो यू शुड नो करंट अफेयर्स। एंड बर्निंग सोसाइटी यू कैन स्किप, दिस इज़ नॉट फॉर यू पीपल। सो हार्डली आई थिंक 7-8 चैप्टर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। HDI वाला भी छोड़ देना है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया VBI चैप्टर कर लेना है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर और फेवरेट टॉपिक ऑफ UGC नेट JRF एज वेल एज PG इंट्रेंस CUET इकोनॉमिक्स। उसके बाद टैक्स तो कर ही लेना है, इन्फ्लेशन वाला कर लेना है, एक्सटर्नल सेक्टर कर लेना है, और ये सब आप एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक करके देख लें इसको। तो ये रहा इंडियन इकोनॉमी में, ये कवर करना है। एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि क्या क्या पढ़ना है आपको, इस बुक से ही पढ़ना है, ज़्यादा बुक नहीं जाना है आपको। इंट्रेंस कवर करना है, नॉलेजेबल नहीं बनना है, ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, जो बुक में दिया है ईच एंड एवरीथिंग, वो ब्लैक डॉट में वगैरह में क्या है, कमिटी दिया है, वो सब के सब आपको कर लेने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, बेसिक नोट्स। तो आई थिंक आई एम डन विथ ऑल दीज। तो ये रहा बुक, यही बुक है। चलिए, थैंक यू गाइज। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि आखिर इस बुक के अलावा जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से हम सेग्रीगेट करके पढ़ें। तो इंडियन इकोनॉमी को सेग्रीगेट किया जा सकता है बेसिकली 2 पार्ट्स में। आई वुड रिकमेंड टू स्टडी इन 2 पार्ट्स। व्हाट आर दीज 2 पार्ट्स? लेट्स सी दिस। तो सी, फर्स्ट पार्ट वुड बी प्लानिंग पार्ट। So you must do the planning part. Planning part will be of 2 part again. Planning में all 5 year plans आपको कर लेने हैं। सारे प्लानिंग 5 years प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, क्या हुए उस प्लानिंग में। जैसे समटाइम्स दे आस्क कि नबार्ड कब आया था, गरीबी हटाओ स्लोगन, इन विच प्लानिंग इट स्टार्टेड। सो ये जो मेजर प्लानिंग है, न्यू एजुकेशन नेशनल जो आपके वो हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे, LPG वाला, वो किसके टाइम में हुआ था। जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग्स कब हुए थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग वाज डन इन 1969। रोलिंग प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग इस बुक में दिया हुआ है। प्लानिंग आप अच्छे से कर लेंगे। एक ये पार्ट हो गया प्लानिंग का। और दूसरा पार्ट पूछा जाता है कभी कभी प्लानिंग में ही कि आप प्लानिंग के थ्योरी को थोड़ा देख लेंगे कि क्या होता है इंडिकेटिव प्लानिंग, क्या होता है डेमोक्रेटिक प्लानिंग, क्या होता है कंट्रोल्ड प्लानिंग, क्या होता है सोशलिस्टिक प्लानिंग, क्या होता है मार्केट प्लानिंग। सो दिस यू शुड नो, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट जो इंडियन इकोनॉमी को कवर करना है, इस सेकेंड पार्ट में भी 2 चीज़ आएंगे। एक तो आएंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और सेकेंड पार्ट आ जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में सारे टैक्सेशन आ जाएंगे, गवर्नमेंट के लॉज, स्कीम्स वगैरह जितने हैं सारे आ जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, GST, सारे के सारे फिस्कल पॉलिसीज़ में आ जाएंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएंगे आपके रोल ऑफ RBI, SLR, CRR, क्या बैंकिंग का रहा, क्या आपका वो NPA वगैरह का इशू रहा, जितने भी हैं बुक्स में दिए हुए हैं, आप अच्छे से उसको कर लें, नोट्स वगैरह बना लें, रिवाइज कर लें। शॉर्ट नोट्स बनाना है, करंट अफेयर्स फोकस रहेगा। और आपको करना है उसके बाद फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग देख लेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा, और सर्विस सेक्टर हो जाएगा। तो बेसिकली अगेन आई एम रिपीटिंग, 5 पार्ट यह हो गए: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। 5 पार्ट ये, एंड पार्ट बी आपका प्लानिंग हो जाएगा। इफ़ यू कैन कवर दिस विद दिस बुक, एंड इट शुड बी supplemented by current affairs, 90% of Indian economics question you can easily solve. That's my personal guarantee from my observation that I can tell you. So you please don't worry about it. In between I will be also starting the series कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कभी मैं SDI पे बना दिया, कभी एक्सटर्नलिटी पे टॉपिक्स पे बना दिया, कभी नेचुरल मोनोपोली पे बना दिया, कभी प्लानिंग इन इंडिया पे बना दिया, कभी WPI, CPI, इन्फ्लेशंस वगैरह पे बना दिया। जो मतलब जो कोर टॉपिक्स रहेंगे ना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा जो थियोरेटिकल इन नेचर हैं। आई एम सॉरी टू से दैट कि जो थोड़े मैथमेटिकल हैं, जो थोड़े डायग्रामेटिकल हैं, फॉर दैट यू डेफिनेटली नीड्स बुक्स एंड प्रॉपर डायग्राम्स एंड प्रॉपर ऑथेंटिक मेंटरशिप। दैट वीडियो आई कैनॉट शेयर, दैट वीडियो आई कैनॉट मेक बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उस टॉपिक को अंडरस्टैंड और ईजी आपको बता दूंगा जो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी मार्क्स फेचिंग है। और मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा CUET, PG, NET, JRF,
इकोनॉमिक सीरीज़ वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। उसके वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे, फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ आएंगे और डेली मैं 2 से 3 टॉपिक करूँगा और मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा जिनसे अधिक से अधिक क्वेश्चंस बने। सपोज दैट इफ़ आई एम कवरिंग पब्लिक गुड टॉपिक, तो 2 क्वेश्चंस इजीली यू कैन सॉल्व। पब्लिक गुड बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें पब्लिक गुड आ जाएगा, उसमें आपको क्लब गुड आ जाएगा, उसमें आपको प्राइवेट गुड आ जाएगा, उसमें आपको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आ जाएगा, उसमें आपको कोस्ट थ्योरम आ जाएगा, जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट हैं दैट आई विल बी कवरिंग। So please try to rebrush what you have done already in graduation. What I just told you, you go to the past, that रमेश सिंह वाला, उसको आप फॉलो करें, दैट इज़ मोर देन एनफ। लास्ट 1 मंथ बचे हैं, उसको 1 वीक में आप कवर कर सकते हैं। हार्डली 7-8 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं गाइज। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी प्लेजेंट वेदर दिस। आई विल बी कीप अपलोडिंग द वीडियोज़ and this is University of Hyderabad. So you please share this videos. Who is looking for this, you please subscribe this, you please support us so that it keep motivating me. और आपके मोटिवेशन से ही आई विल मोटिवेट टू मेक योर वीडियोज़। अगर मैं देखूंगा कि इसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस, पीपल आर नॉट फीलिंग कि आई शुड गो विद द सर की वीडियोज़ ऐसे ही फालतू का ये बना रहे हैं, तो आई विल बी नॉट मेकिंग वीडियोज़। तो कल से वीडियोज़ के सीरीज़ आने शुरू हो जाएंगे। सो आई होप आई एम डन रिगार्डिंग द ऑल द स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड व्हाट आई सजेस्टेड यू दैट यू फॉलो। प्लीज़ डोंट डाइग्रेस योर सेल्फ, डोंट डाइवर्ट योर माइंड कि ये आ गया मार्केट में, वो आ गया, कभी वहाँ से वीडियो आ जाएगा, कभी वहाँ से PDF आ जाएगा, कभी वहाँ से स्लाइड आ जाएगा। नो, प्लीज़ नो, फोकस एटलीस्ट 1 वीक, मोर देन एनफ। और इंडियन इकोनॉमी में ऑलमोस्ट आई वुड से 20 to 30% क्वेश्चन आर कमिंग, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी कवर्स योर पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो, डेवलपमेंट पोर्सन ऑल्सो, करेंट इकोनॉमिक्स ऑल्सो। सो गाइज हम वीडियो यहाँ एंड करते हैं। ऑलमोस्ट ये 10 मिनट का हो चुका है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और कल से जो हम लोग इकोनॉमिक्स का सीरीज़ करने जा रहे हैं वो 4-5 मिनट का सीरीज़ होगा। 4-5 मिनट में हम लोग 3-4 मेजर टॉपिक्स देख लेंगे। तो यू प्लीज़ फॉलो दिस ट्रेंड, यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस टू गेट द अपडेट एंड नोटिफिकेशंस, ताकि आपका कोई भी लेक्चर छूट ना जाए। क्योंकि एक भी अगर आपका लेक्चर छूटता है तो आई कैन बेट यू आप 1 मार्क्स लूज करोगे एटलीस्ट। फ्रॉम ईच एंड एवरी वीडियो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी देयर, दैट्स माई गारंटी, I promise you. And after the exam that I will show you also, as people in the market and this YouTube, all these they show, I will also show कि from one video definitely at least 1 question will be coming. तो I think चलो it's getting little long video, तो चलो बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या डालेंगे उसके लिए आप बने रहें। और CUET का जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। सो यू प्लीज़ डोंट वरी। PG इंट्रेंस से लेके आपके जितने भी काउंसलिंग होंगे, जहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है, एडमिशन के डिटेल्स को लेकर आएंगे। एक नया और नोटिफिकेशंस आया है कि जो अभी आप 800 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी यू आर अप्लाइंग, दिस इज़ CUET फॉर्म। और जो इसके बाद एडमिशन जब आप लेंगे जिस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा आफ्टर द CUET रिजल्ट ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। दोज ऑल डिटेल्स विल बी कमिंग, सो आई विल बी ऑल्सो डीलिंग। बट टिल एग्ज़ाम नथिंग मच मोर इज़ कमिंग। तो टिल एग्ज़ाम आप लोग फोकस करें अपने एग्ज़ाम पे, अपने स्ट्रेटजी पे। और इंडियन इकोनॉमी का ये स्ट्रेटजी रहा। सो यू प्लीज़ इसको वॉच करें, अपने मित्रों को बताएं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो इसको ककुंड होकर नहीं पढ़ना, अकेले नहीं पढ़ना। यू प्लीज़ शेयर दिस। इफ़ यू वॉन्ट शेयर देन योर नॉलेज विल डिमिनिश। वो बोलते हैं ना, धन बांटने से घटता है, लेकिन एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग जो बांटने से बढ़ जाता है। इफ़ यू डिवाइड, जनरली डिवीजन करने से क्या होता है, इफ़ यू डिवाइड 10 पार्ट्स इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, 10 को 2 इक्वल हो जाएगा। बट नॉलेज इफ़ यू डिवाइड among 10 तो 10 into 10 वो 100 टाइम्स हो जाएगा। सो यू प्लीज़ ट्राई टू शेयर द नॉलेज। डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है नॉलेज का, दैट इज़ द यूनिकनेस। सो यू प्लीज़ फॉलो दिस स्टेयर, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड चलो स्टे ट्यून विथ मी, एंड रिगार्डिंग एनी डाउट्स यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिलो, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप रिगार्डिंग अपडेट्स एंड ऑल। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड आई विल बी कीप पोस्टिंग रिगार्डिंग ऑल इकोनॉमिक्स वीडियोज। द सीरीज इज गोइंग टू बी स्टार्ट विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल हु इज अपेयरिंग फॉर PG इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एंड CUET NET JRF नेक्स्ट मंथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।